Okay, so in the earlier session, we have seen what frequency analysis is, or frequency domain analysis. That is, we had seen that when we don't have the transfer function, or when we want to have some system identification from the practical system, one of the methods that we can use is actually frequency domain analysis, or you can say frequency response. Okay, and we get that frequency response by giving the system a sinusoidal input. And when we are giving a sinusoidal input to an LTI system, at the output, we observe that we are also going to get a sinusoidal wave, which is going to be same in the frequency as compared to the input, but different in magnitude and phase. And so that is why we have a we have designed a method called Bode Plot, in which जो output हमें मिला है कैसा output होगा, system कैसे behave करेगा, on the for that information we have a plot in which there is a technique जिसे follow करके हम system का expected magnitude और phase जो होता है उसे हम plot करके ये check करते हैं that how the system is going to behave for a particular range of frequencies. कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो अनस्टेबल हो जाएगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी तक वो स्टेबल बिहेव कर रहा है. ओके, व्हाट दैट कैन बी द क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि बियॉन्ड दैट फ्रीक्वेंसी नाउ द सिस्टम इज गोइंग टू गो इनटू द अनस्टेबल फेज. ओके, so the basic things that we have to remember is Bode diagram is actually a combination of two graphs. जो मैंने आपको एक फिगर दिखा रखी है स्लाइड में. This is just a random Bode diagram. So this is what actually a Bode graph looks like. Okay. Now on the y-axis you have two things, that is magnitude, okay, and the phase. And on the x-axis you can see that we have frequency, but this is not in the simple scale or the linear scale, rather this is in logarithmic scale. Okay, so on the x-axis we have log of frequency, and on the y-axis we have magnitude and phase. Okay, and this magnitude phase is in degrees, so whatever calculations we do in general, we can follow the same values, because this is just like we deal with phase in degrees. But the magnitude which we plot over here is actually in decibels. Okay, so the original magnitude of the system we have to convert into decibel, and then we have to plot with respect to the log of frequency scale. Log frequency use करने का जो एक पहला purpose वो simple है, that when we are using a logarithmic scale, you can actually accommodate a very large range of frequencies in a small graph. Okay, because यहाँ पर हमें range से मतलब है, of all individual frequencies actually may not matter. Okay, so because we want to see a large scale of frequency कि उस frequency range में कैसे system behave करेगा, so that is why this method is designed in such a way that the frequency is taken in the logarithmic scale. Okay, so we have two plots, one is magnitude, one is phase, and on the x-axis in both the plots we have the frequency in terms of logarithmic. Okay, so that's a logarithmic scale, but your y-axis, that is magnitude and phase, they are linear scale. But in terms of magnitude is in terms of decibel, and phase is in terms of degrees. Okay, so let's move on. Now first thing हमें पता चल गई कि magnitude has to be in decibel. अभी तक हम magnitude का formula लेते थे G into H. Now for frequency domain में हम substitute करते हैं S is equal to J omega. This we have already seen in the last lecture. And अगर हमें उसका magnitude चाहिए, so we take the mod of that particular quantity or complex number, whatever you say, right? So now, but this mod, when we convert into decibel, the formula is 20 log mod of G into H. This is the formula for converting your magnitude into decibels, and the log has a base 10, and the formula is 20 log mod of G into H. So hum throughout the analysis, we are now going to use this formula for the magnitude. Okay, and phase remains the same. Phase हम tan inverse, कोई भी complex number होता है तो हम tan inverse करके उसका angle निकालते हैं. That formula remains the same, just that the magnitude is now going to go into the decibels. So that is why we are, instead of using mod of GH, now we are using the term 20 log mod of GH. Okay.
सो फर्स्ट थिंग हम पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो ये स्केल बना हुआ है, ये जो एक्सेस है, इस पे हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी। जैसे जब हम एस प्लेन की बात करते हैं तो हमारे पास एक इमेजिनरी एक्सेस होता है, दैट इज द बाउंड्री कंडीशन। और हमें ये पता है कि अगर रूट लोकस उसको क्रॉस करके राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। तो वैसे यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ बाउंड्री चाहिए जिससे कि हम ये फाइंड आउट कर सके कि सिस्टम का कब सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ को जाने लगा है। तो उसके लिए हम मार्जिन कंडीशंस को इस पे प्लॉट करते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट इन द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो हमारी मार्जिन कंडीशंस होती हैं फॉर स्टेबिलिटी, that is mod of g into h should be equal to 1 and angle phi of g into h should be minus 180 degrees। ठीक है, तो ये दो हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं। अब इन दो बाउंड्री कंडीशंस को हमें इस ग्राफ पे ढूंढना है। तो एंगल लाइक आई टोल्ड यू इट इज इन डिग्रीज, so I can just take minus 180 degrees। okay, और अब obviously हमें पता है माइनस है तो जीरो से नीचे की तरफ होगा, राइट। सो हमने एक जो एक्सेस फेज वाला एक्सेस है उसमें हम जीरो से स्टार्ट करके नीचे की तरफ जाएंगे एंड वी आर मेकिंग वन पॉइंट एज minus 180 degrees which becomes the datum line for us, or you can say the boundary line for us। now magnitude हमारे पास जो है this is mod of gh is equal to 1। अब इसे हमें डेसिबल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिबल में जब मैं कन्वर्ट करूंगी दिस इज गोइंग टू द बाउंड्री कंडीशन इज गोइंग टू बिकम 20 log of 1 which is actually 0। log 1 is actually 0। okay, so now that means the datum line or the boundary line in the magnitude axis is 0 dB। okay, so इसलिए मैंने यहाँ पे I have shown it with the dark highlighted line। this 0 dB axis on the magnitude graph is my datum line for the stability। ओके, इस लाइन के रेस्पेक्ट में मैं अपने सारे रिलेटिव मार्जिन्स जो भी हैं स्टेबिलिटी के वो मैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में चेक करने वाली हूँ। सो द बाउंड्री कंडीशंस व्हिच वी हैड इन द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस that we have identified on this scale। so now in both these scales we have to check everything with the reference to the 0 dB line in magnitude and minus 180 degree line in the phase graph। okay, once we draw the graph these two are going to be the comparative lines for us। okay, so let's move on। so now here these two conditions are clear that we have converted it into decibels। that is why everywhere now this 20 log is going to be there in my equations because I have to deal with all the magnitude in the decibels। okay, ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे हम जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं, अगर आपको याद हो वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट। यहाँ तो हमें पता चल गया कि ये डीबी है, ये डिग्री है, बट पर डीबी पर व्हाट इन फ्रीक्वेंसी स्केल आल्सो वी नीड सम यूनिट टू डिफाइन, राइट। अगर मेरे को सपोज यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है सो आई नीड टू डिफाइन द स्लोप इन सम टर्म्स। ओके, because the slope will if I have to draw a slope it is going to be something y axis upon something on x axis, तभी मुझे slope मिलेगा, right। if अगर मैं देखूं y is equal to mx where m is the slope, so m is actually y upon x, तो उसी के corresponding मेरा यूनिट भी बनना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर अब फ्रीक्वेंसी का जो हमें यूनिट बनाना होता है वो हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया विच इज आइदर डेकेड और ऑक्टेव। ओके, देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रेडियन पर सेकंड में है, दैट इज ट्रू, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट दिस स्केल इज नॉट सिंपल फ्रीक्वेंसी, दिस स्केल इज लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हम उसको रेडियन पर सेकंड डायरेक्टली नहीं लिख सकते, वी नीड टू आइडेंटिफाई सम अनदर यूनिट। तो वो यूनिट हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है, ये सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के लिए है, ये बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर डायरेक्टली राइटिंग दिस रिलेशन। okay, octave actually means omega 2 is equal to twice of omega 1 and decade means omega 2 is equal to 10 times of omega 1। तो बेसिकली अगर मुझे कोई भी पर यूनिट निकालना है, कोई भी दो वैल्यू कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा, अगर आपको याद हो तो जैसे हम अगर y is equal to mx लिखते हैं तो y upon x को हम y1 minus y2 upon x1 minus x2 भी लिखते हैं। That is also another form of coordinate expression, स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो पर यूनिट अगर हमें निकालना है तो वो यहाँ क्योंकि लॉग के टर्म्स में होता है तो अगेन इट गोज इनटू डिवीजन। ठीक है, सो इसको हमने
to ease out this thing, what we have identified is हमने दो तरीके के units identify कर दिए हैं for the log scale, frequency scale. One is octave, where omega 2 is 2 into omega 1, and one is decade, which is omega 2 is equal to 10 times of omega 1. यानी कि जो next value होगी वो first value के 10 times होगी. Okay, so this is actually decade and this one is octave, और इनका आपस में भी equivalence होता है, that is 20 dB per decade is actually equal to 6 dB per octave. अब इसमें this is just for your knowledge I am writing over here. Octave usually is very less popular. Mostly in all the books you are going to find this particular unit, that is per decade. जितनी भी हम slopes निकालेंगे, जितने भी हम graphs बनाएंगे, everywhere mostly you will find the values in per decade. Like 20 dB per decade makes it a line of having a slope 20. Okay, that is how it is interpreted. So आपको सिर्फ ये decade वाला भी आप याद रखोगे तो that is sufficient. Octave actually is not very that much popular. Usually in the books octave is not used. Only decade is used. Okay, so अब हमारे पास unit identify हो गया है कि जब हम इस पे कोई graph plot करते हैं तो उसकी जो value होती है that is in the unit dB per decade. Okay, जब भी आप slope बनाओगे, so या straight line बनाओगे, so the unit that now we are going to use in the magnitude one is dB per decade. Okay, let's take one example now. अब हमारे पास सिस्टम है 1/1 plus ts. सिंपल है, ये आपको सबको पता है. That means there is one pole in the system. Okay, so 1/1 plus ts के फॉर्म में अगर हमारे पास सिस्टम है, हम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना चाहते हैं and we want to draw the Bode plot for this, right? तो सबसे पहली चीज, अगर हमें फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना है, हमें s को j ओमेगा से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. So I get j omega is equal to 1/1 plus j omega t. राइट, अब ये नॉर्मली जैसे अगर कोई एग्जांपल आपको दिया है, सो टी यूजुअली यू विल नो इन टर्म्स ऑफ सम नंबर. लाइक अगर ये आरसी सर्किट होगा, सो यू माइट बी गेटिंग सम वैल्यू 1/1 plus 3s और मे बी 1/1 plus 2s. सो टी हमने यहाँ जनरल ले लिया है, but usually when the transfer function is given to you, this t will be some numerical value. Okay, so that you can actually substitute in the last formula and calculate the actual graph. Okay, so the first step is we are substituting s is equal to j omega. जब हमने j omega substitute कर दिया, now this 1/1 plus j omega t becomes a complex number. Okay, so here important चीज है Bode plot के लिए, that you please revise your concepts of complex numbers, क्योंकि complex अलग अलग तरीके के poles and zeros के लिए अलग अलग तरीके का complex एक्सप्रेशन बनेगा. उसका मॉड कैसे लेना है आपको वो आना चाहिए. दैट मींस मैग्नीट्यूड कैसे लेना है, एंगल कैसे लेना है, वो आपको आना चाहिए. ओके, सो फॉर दैट पर्पस जस्ट रिवाइज योर कॉम्प्लेक्स नंबर के उसका मैग्नीट्यूड और एंगल अलग अलग जो वैल्यूज होती हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस के लिए हम कैसे निकालते हैं. ओके, सो नाउ द कॉम्प्लेक्स expression that we have got is 1/1 plus j omega t. इसका हमें मॉड लेना है. नाउ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, मैग्नीट्यूड एंड एंगल m एंड एंगल phi. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इन दो टर्म्स के हेल्प से डिनोट करते हैं. यहाँ पर हमारा जो मैग्नीट्यूड है दैट बिकम्स 1/√1 plus omega square t square and angle is minus tan inverse omega t. ओके, अब मैग्नीट्यूड मिल गया हमें इन सम टर्म्स, इन सम फॉर्मूलाज. अभी हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया और phi का एक्सप्रेशन आ गया. अब हम इसको बोडे के कंपैटिबल बनाते हैं. बोडे के कंपैटिबल ये कैसे बनेगा? एंगल को हमें कुछ छेड़ना नहीं है, एंगल डिग्रीज में ही आता है और वो भी डिग्रीज में ही है स्केल. तो एज इट इज वट एवर माइनस टैन इनवर्स ओमेगा टी यू आर गेटिंग, दैट वी कैन प्लॉट. सो हमें एंगल को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, हमें वहां पर जो प्लॉट करना है दैट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स. तो अब इस मैग्नीट्यूड को हमें डेसिबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, 20 log mod of g हमने किया था पीछे. सो नाउ व्हाट वी गेट द एक्सप्रेशन इज 20 log of 1 plus omega square t square under root. ओके, अब वो 1 अपॉन जो था उसको मैंने -1/2 कर दिया है. अब 1 अपॉन अंडर रूट था, दैट मींस 1 अपॉन द एक्सप्रेशन रेज टू द पावर 1/2. जब आप उसको ऊपर लेकर जाओगे तो पावर में माइनस आ जाएगा. So you get the expression 20 log 1 plus omega square t square raised to the power -1/2.
ओके, आई कैन सॉल्व दिस फर्दर। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया -10 log 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब ओमेगा और टी, क्योंकि ओमेगा एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए हमें चेक करना है, ओमेगा एक जनरल वेरिएबल है और हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए चेक करना है कि ये कैसे काम करता है। तो यूजुअली हम कुछ सेट बना लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो एक्सप्रेशन है, जैसे 1 प्लस ओमेगा टी है, 1 प्लस ओमेगा टी को मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ कि ओमेगा टी जो है दैट इज वेरी लेस देन 1 एंड ओमेगा टी कैन बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1। ओके, उसी को मैंने यहाँ पर दो तरीके से जो लिखा है, दैट ओमेगा इज वेरी मच लेस देन 1 बाई टी और ओमेगा इज वेरी मच ग्रेटर देन 1 बाई टी। ये बेसिकली वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर दी, बिकॉज टी लाइक आई टोल्ड यू वुड बी सम न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैंने इस तरीके से दो कैटेगरी में अपनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड कर दिया, उसमें मैं कुछ अजम्पशन फॉलो कर सकती हूँ। अगर मेरा ओमेगा टी जो है वो 1 से बहुत छोटा है, so 1 plus omega square t square can be substituted simply as 1। अगर मेरा ओमेगा टी 1 से बहुत बड़ा है तो मैं 1 को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, एंड आई कैन ऑलवेज हैव इट एज ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। So now over here, this substitution when I do, what I'm going to get 20 log mod of g of j omega, उसका एक्सप्रेशन मेरे पास आया था -10 log of 1 plus omega square t square, राइट। फर्स्ट कैटेगरी में जब ओमेगा टी 1 से बहुत छोटा है, मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, आई गेट -10 log 1 which goes to 0 because log 1 is equal to 0, so I get the value 0। ठीक है, दूसरे केस में मैंने क्या किया, मैंने 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, so I get ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब वापस अगर मैं ओरिजिनल फॉर्मूला से देखूं, मैं इसको 20 ही रहने देती हूँ, तो ऊपर का जो 1/2 था वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आई गेट द एक्सप्रेशन -20 log ओमेगा टी। माइनस को बाहर ले आई मैं, और 1/2 और जो स्क्वायर था वो आपस में कैंसिल आउट हो गया। सो एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी लेस देन 1 बाई टी के लिए, मेरे पास जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड की वो 0 है, और ओमेगा जैसे ही 1 बाई टी से बड़ा हो जाता है तो मेरे पास मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो -20 log ओमेगा टी। अब देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि 0। तो वो कांस्टेंट वैल्यू मैं एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 0 दिखाया हुआ है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट मींस वन कांस्टेंट वैल्यू। तो सिमिलरली फॉर द फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 1 बाई टी, ओके, फ्रॉम 0 टू 1 बाई टी, मेरा जो ग्राफ होगा वो 0 वैल्यू पर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, जैसे ही मेरी ओमेगा 1 बाई टी के ऊपर जाएगी तो मुझे जो फॉलो करना है दैट इज -20 log ओमेगा टी। नाउ log ओमेगा टी, नाउ दिस इज फ्रीक्वेंसी, राइट, जो कि x एक्सिस पर है, और दूसरी इधर मेरे पास m है जो कि मैग्नीट्यूड यानी कि y एक्सिस पर है। सो आई कैन कंपेयर दिस फॉर्म टू y इज इक्वल टू mx। ओके, m इज इक्वल टू -20 log ओमेगा टी जो बन रहा है वो बेसिकली y इज इक्वल टू mx वाला फॉर्म बन गया, जिसमें कि y जो है वो मेरा मैग्नीट्यूड है और x जो है वो log ओमेगा टी है, बिकॉज आई नो दैट इट इज ऑन द लॉगरिथमिक स्केल, तो वो x बन गया मेरा। तो इसका मतलब m यानी कि स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन बिकम्स -20। So basically this line will start from omega is equal to 1 by t, ओके, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई टी पॉइंट से ये लाइन स्टार्ट होगी, हैविंग अ स्लोप ऑफ -20। ओके, हैविंग अ स्लोप ऑफ -20 का मतलब हुआ इट इज गोइंग टू गो डाउनवर्ड्स। तो यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली कि दो सेट ऑफ रेंजेस में मैं अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर सकती हूँ, फ्रॉम 0 टू 1 बाई टी एंड फ्रॉम 1 बाई टी टू इंफिनिटी। ओके, सो फ्रॉम 0 टू 1 बाई टी जब तक भी मेरा फ्रीक्वेंसी रेंज होगा तो वो स्ट्रेट लाइन 0 होगी। फिर जैसे ही ओमेगा जो है 1 बाई टी से बड़ी हो जाएगी तो वहां पर -20 log ओमेगा टी फॉलो होगा, which is actually comparable to the form y is equal to mx, where m is the slope that is -20 and x corresponds to the x axis that is log omega t। ठीक है, तो ये बेसिकली ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई टी पॉइंट से स्टार्ट होकर -20 स्लोप की एक लाइन बनेगी। Okay, so these two expressions I have got for the magnitude, and for the phase I have the expression tan inverse omega t। इसका मतलब सिंपल है कि मुझे tan inverse का ग्राफ बनाना है।
ठीक है, tan inverse of something x is, we know what tan graph is, right? So I can simply make a tan inverse graph, and that will help me in plotting the phase plot. Okay, so this is what actually it is going to look like. अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला पार्ट देखो, फर्स्ट फिगर ए जो है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/t, अब मेरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गई है, ठीक है, या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, या ये ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां से मेरा ग्राफ एक टर्न अराउंड लेता है, राइट? सो नाउ फ्रॉम हियर मैंने जब तक ओमेगा 1/t से कम थी, so it is going to be a straight line. Then after omega is equal to 1/t, now this falls down, that is it is going to give me a graph which is a straight line of slope -20. Okay, so ये जो slope बन रहा है ये actually -20 dB का बन रहा है. Okay, ये मैंने this I have picked up from the net one figure which actually corresponds to this particular example only, because in the book the figure that was given was very hazy, it was not very clear. So I have picked up this random figure because it actually corresponds to the same thing what I'm trying to explain you. Okay, so that is why these labelings are a little different, so don't go confused with that. You just have to understand this part, that हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है. ओमेगा इज इक्वल टू 1/t तक ये स्ट्रेट लाइन आकर, और उसके बाद ये स्लोप पे चला जाएगा -20. अब अगर आप इसको देखो तो दिस इज समवॉट अ tan इनवर्स ग्राफ. tan इनवर्स ग्राफ कैसा होता है, लेट मी शो यू. दिस इज व्हाट एक्चुअली इट लुक्स लाइक. ओके, अगर आप tan का ग्राफ बनाओगे तो ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसी तरीके का बनता है. यस और नो, डू यू आइडेंटिफाई दिस? Yes, ma'am. ऐसा ही कुछ लगता है tan का ग्राफ व्हेन यू ड्रॉ इट इन टर्म्स ऑफ tan थीटा. उसी का जब आप इन्वर्स कर देते हो तो बेसिकली इन्वर्स करके आपने क्या किया, आपने वो वर्टिकल ग्राफ को हॉरिजॉन्टल कर दिया है. जब आप उसको हॉरिजॉन्टल करोगे तो वो ऐसा ही ग्राफ बन के आएगा. ओके, उसको हमने थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जस्ट इस वाली फिगर में शो किया हुआ है, अदरवाइज इट इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस. ओके, सो दिस बिकम्स, क्योंकि मेरे पास माइनस tan इनवर्स थीटा एक सिंपल फॉर्मूला है, tan इनवर्स मुझे पता है कि वो ग्राफ कैसा होता है, एंड इट इज ऑब्वियसली कमिंग इन माइनस, क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो आपको दिख रही हैं ये माइनस में ही है, मेरा एक्सिस माइनस में है. अगर ये प्लस में होता तो जीरो के ऊपर जो डिग्रीज होती हैं मैं उस पे बनाती, ये ऑब्वियसली इट इज कमिंग इन माइनस. ओके, सो that this is how basically we plot the magnitude graph and the phase graph. अब देखो, अगर इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में मेरे पास ये जो पोल नीचे आ रहा है अगर ये जीरो हो, यानी कि जी जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 + ts हो जाए, यानी कि जो पहले वैल्यू पोल में थी अगर वो जीरो में चली जाए, यानी कि न्यूमरेटर में चली जाए, तब क्या होगा? तो जहां जहां मैंने देखो माइनस लगाया था वो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस कहां से आया था, बिकॉज ऑफ द पावर -1/2. ठीक है, जब ये ऑलरेडी न्यूमरेटर में अगर ये एक्सप्रेशन आ जाता है तो ये माइनस हट जाएगा, इट विल ओनली बी 1/2, और 2 से वो स्क्वायर कैंसिल होकर यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशंस बट विद अ पॉजिटिव साइन. ओके, आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, you will get same expressions 10 log 1 and 20 log omega t but with a positive sign. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखो इसको जब आप प्लॉट करोगे तो 0 dB वाला पार्ट उतना वो ही रहेगा, लेकिन पहले जो -20 dB वाला स्लोप जा रहा था अब वो +20 dB वाला स्लोप जाएगा, वो प्लस डायरेक्शन में इट इज गोइंग टू स्टार्ट शोइंग यू अ स्लोप. ओके, एंड सिमिलरली जो ग्राफ है आपका, दैट आल्सो ऑब्वियसली यू कैन सी कि इट इज गोइंग टू बी इन द positive direction. Okay, so like this you can actually start plotting the various components. अब देखो, अगर मेरे पास GSHS एक constant value है, okay, GSHS is equal to K है, if it is constant, तो मेरे expressions क्या बनेंगे, 20 log K and 5 will be 0. अब 20 log K क्या है, again this is going to be a constant value. ठीक है, ये expression log K will be, K is some numerical value, this is going to be some integer, some value in terms of constant, उसको आप 20 से multiply कर दोगे, so you will get some constant value over here, and phi is 0 degrees. So इस तरीके का अगर expression है आपके पास which is a constant, तो आपको magnitude और phase दोनों पर दो straight lines मिल जाएंगी. Phase will be 0 because it's अगर it corresponds to DC actually, DC का कोई phase नहीं होता है, so that is a straight line, and यहाँ पर it corresponds to actually something like a step response, right? So अगर ये आपका constant है,
right? So like this you can actually make the expressions. अब अगर मेरे पास simply s हो गया, okay, if the expression is like this, then what expressions I'm going to get? Magnitude will be 20 log omega dB and phase angle phi will be 90 degrees. So phase मेरा 90 degree पे line आ जाएगा, और जो मेरा ये था 20 log omega, इसमें मैं कुछ random values के check points check कर सकती हूँ. जैसे मैंने अगर इसको ओमेगा को 0.1 रखा था, so the magnitude is going to be -20. So ये -20 से start होगा, फिर ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे ये जीरो लाइन को क्रॉस करेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 10 पे फिर ये 20 डीबी पे चला जाएगा, राइट? सो ये ऐसा होता है व्हेन समटाइम्स यू आर गिवन अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कि इस रेंज से इस रेंज तक हमें ऑपरेट करना है. सो व्हाट काइंड ऑफ अ बोडे प्लॉट यू आर गोइंग टू गेट इफ यू हैव टू प्लॉट दैट. सो यू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन and उस range के अंदर you can have some check points and you can then with the help of those check points you can plot the graph for your magnitude. Okay, so यहाँ पर आपको दिख रहा है that the magnitude plot is a line which is having a slope of 20 dB. Okay, this line starts at omega is equal to 0.1 radian per second, having a magnitude of -20 dB, and it continues on the same slope, touching 0 dB line at omega is equal to 1 radian per second. In this case, the phase plot is going to be 90 degrees line. Okay, so like this. Now this table I have put in general, अलग अलग तरीके के जो भी आपके पोल्स या जीरोस बनते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके मैग्नीट्यूड और स्लोप्स क्या क्या आते हैं. दिस इज अ जनरल टेबल फॉर दैट विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग. देखो ये अभी हमने s किया था, s को हम j ओमेगा अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 20 log ओमेगा आ जाता है, जहां कांस्टेंट था वहां पर 20 log k आ गया. ठीक है, सो लाइक दिस. ये देखो ये हमने किया था 20 log ओमेगा टाउ, जो अगर जब हमारे पास 1 प्लस जी ओमेगा टाउ के फॉर्म में था. जब ये 1/1 प्लस जी ओमेगा टाउ बन गया तो -20 log ओमेगा टाउ आ गया यहाँ पर. सो दिस इज द सेम थिंग जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, just that for a more variety of types of poles and zeros we have directly written कि किस तरीके का आपके पास expression आएगा मैग्नीट्यूड का और फेज का, and what is going to be the slope of the line that you are going to draw. Okay, so this table you can always refer, and कुछ common values जैसे जो simple values हैं अगर आप याद कर लोगे so it is going to be very useful to you. But if you are not able to remember, no issues, you just remember the method. When you follow the correct steps log वगैरह के साथ वो automatically, जैसे अब यहाँ पर जब हमने j ओमेगा किया यानी कि s था तो 20 log ओमेगा आया. अगर मैं इसको s स्क्वायर कर दूंगी, जब आप उसको सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली j ओमेगा टू द पावर 2 आएगा. log जब आप लोगे तो 20 into 2 अपने आप आएगा वहां पर. सो दैट इज गोइंग टू बिकम 40. इसका मतलब जो उस लाइन का स्लोप होगा वो 40 का स्लोप होगा उसके पास. ओके, 40 dB पर डेकेड का स्लोप बनाएगी वो लाइन. सो if you remember the method, the log formulas, automatically you can get these without remembering them by heart. वो अगर आप सही से करोगे so it is going to give you. अब देखो 1 upon कर दिया जब मैंने s को, तो क्या हुआ, जो s के लिए आया था उस वही फॉर्मूला आया लेकिन साथ में माइनस आ गया, बिकॉज जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी तो दिस इज गोइंग टू बिकम s टू द पावर -n. तो तब मैं उसका log लूंगी तो ये -20 into n log ओमेगा बन जाएगा. So this is nothing very surprising or nothing to be mugged up. This all this comes from the same log formulas that we have followed. But just that it is for your ready reference. अगर कुछ simple values आप याद कर सकते हो तो आप याद कर लोगे, that will be better for you. Okay, then now we have, of course मैंने बात करी थी कि हमें stability check करनी है, तो अब हम stability कैसे check करेंगे. तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं, gain crossover frequency and phase crossover frequency, and we have gain margin and phase margin. Now what is phase crossover frequency? The frequency at which the phase plot is having a phase of 180 degrees is known as the phase crossover frequency. जो आपने phase का plot बनाया था वो -180 डिग्री लाइन को जिस पॉइंट पे टच करेगा वो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी उसे हम फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, and it is denoted as omega pc. pc is phase crossover frequency. Then we have gain crossover frequency. Gain crossover is the frequency at which the magnitude plot is having the magnitude 0 dB. तो 0 dB लाइन को मेरा जो प्लॉट है वो जितने फ्रीक्वेंसी पे
जीरो डीबी लाइन को कट करेगा, यानी कि जब ग्राफ में वो जीरो डीबी लाइन को कट करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं एक्स एक्सिस पे चेक कर लूंगी कि मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है. दैट इज गोइंग टू बी द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा GC. Okay, now to get the stability you have to remember these points. The stability of the control system based on the relation between phase crossover frequency and gaze crossover frequency is as follows. If my phase crossover frequency is greater than gain crossover frequency, then the system is stable. If the phase crossover frequency is equal to gain crossover frequency, system is marginally stable. And if the phase crossover frequency is larger than the gain crossover frequency, then the system is unstable. तो आप इसमें आप देखो कि phase crossover frequency जो है that should be greater than gain crossover frequency. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ग्राफ में कंपेयर करके देखना चाहूं तो जो मेरा ये ग्राफ मैग्नीट्यूड वाला है ये 0 dB को पहले कट कर देना चाहिए एज कंपेयर टू वेयर द फेज इज कटिंग द -180 डिग्री, तभी मेरा फेज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा. ठीक है, मेरी कंडीशन क्या है दैट द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो पॉइंट है जहां पर मेरा ये वाला ग्राफ 0 dB को कट कर रहा है और फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर मेरा ये वाला ग्राफ जो है वो 180 डिग्रीज को कट करेगा. ठीक है, सो दैट मींस जो मेरा 0 dB को कट करने वाला जो पॉइंट है वो पहले आ जाना चाहिए एज कंपेयर टू द पॉइंट वेयर दिस ग्राफ इज गोइंग टू कट द 180 डिग्रीज एंगल. दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी. अगर ये उल्टा हो जाएगा then the system becomes unstable. Okay, similarly you can actually calculate gain margin and phase margin. गेन मार्जिन की वैल्यू क्या होती है माइनस मॉड ऑफ G एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, यानी कि जो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी थी वहां पर आपके जो सिस्टम का गेन है दैट इज योर गेन मार्जिन. ओके, एंड फेज मार्जिन इज एक्चुअली 180 प्लस द एंगल एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे. Gain margin is actually the mod of the gain of the system, or you can say magnitude of the system at phase crossover frequency, and phase margin is 180 degrees plus the angle of your system at gain crossover frequency. तो गेन मार्जिन को हम फेज फ्रीक्वेंसी पे चेक करते हैं और फेज मार्जिन को हम गेन फ्रीक्वेंसी पे चेक करते हैं. इस तरह क्रिस क्रॉस करके आप याद कर लो कि गेन के फॉर्मूला में फेज वाली फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए और फेज के फॉर्मूला में गेन की फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए. And from here the condition is that if both the gain margin and the phase margin are positive, then the system is going to be stable. If both gain and phase margin are equal to 0, system is marginally stable. And if gain margin and phase margin they are both negative or any one is negative, that means the system is unstable for that range of frequencies. Okay, so like this we have this method which is actually very powerful tool to understand how the system is going to behave within a range of particular frequencies. Okay, and this actually is very useful when we, because these diagrams today we can actually generate very quickly with the help of softwares. So at a glance you can actually come to know whether it is stable, whether it is unstable, of course in what range of frequencies. Okay, you always define when you're talking of frequency, you always talk in terms of what range of operation we are talking about. किसी ना किसी पॉइंट पे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाओगे, किसी ना किसी पॉइंट पे तो सिस्टम हो सकता है अनस्टेबल हो ही जाए, बट वी आर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज आवर पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो उसके हिसाब से हम जब भी बोडे प्लॉट ड्रॉ करते हैं, एट अ ग्लांस वी कैन कम टू नो व्हाट इज द गेन मार्जिन, व्हाट इज द फेज मार्जिन. अब ये देखो जहां भी ये जस्ट एज एन एग्जांपल वी कैन से जहां पर भी ये कट करेगा we come to know that yes this is the gain crossover frequency. ये जहां पर जाके कट करेगा, now this is going parallel to 180, so this is never going to cut. Okay, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा स्टेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, right? So like this we can actually at a glance you can find out that what are the various stability properties of this particular system, and then with the help of that we can find out कि कितने रेंज में हमें काम करना चाहिए, क्या इसमें हमें
improvements karne chahiye, what kind of controller we should draw. So that we can actually analyze with the help of the properties that we analyze for the system with the help of the Bode plot.